Hello everyone, myself Nivrutti Awad. I'm 2021 batch IAS officer Rajasthan cadre. So today I will be talking about how to crack prelims. Before that, I would like to briefly introduce myself. So I have given 6 attempts in UPSC. In that, I have cleared all 6 prelims. I have attempted 5 interview of UPSC. So I would like to share my strategy about prelims, that how I could clear 6 prelims, right? So my book list was very brief. मतलब first I used to focus on NCRTs. NCRT के बाद एक one standard book and then yes, obviously linking with current affairs. So reading daily newspaper has no alternative in the process. If you are replacing newspaper with some other source for short term, it will be good. But I think in the long term, we can rely more on newspaper rather than just any shortcut. So my first suggestion for those who are applying, those who are appearing for prelims this year is focus more on active learning rather than spoon feeding, because now in the times of information overload, if you see that a lot of material is being produced in the market, in the Xerox shops of old Rajendra Nagar or on the websites, but how much you will able to grab, that depends on your capacity. So my first, I would like to limit your resources. So taken for example, for polity, Lakshmikant is fixed. For geography, there are 2 NCERTs, Indian Physical Geography, World Physical Geography. Focus on that. And then on that, build on mapping. For mapping, if you want to go for a one source, go for any single book like Majid Hussain book, so that your 4 to 5 questions of mapping, whether it is Indian mapping or global mapping, will be covered very well. Then you should have one atlas, and atlas, Orient Black Swan or Oxford publication, whichever is good for you, you can go for it. But these are the 3 to 4 major resources you should do for geography. And if you analyze in the recent times, geography, they have started asking very basic questions from NCRT. Primary waves, secondary waves, climate type, forestation. So these are the repeated questions, and they're asking very basic questions: cold current, cold ocean currents, warm currents. So focus on that. So 2 NCRTs along with mapping will be a good strategy. आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप ये प्यारा सा पैकेजिंग के साथ एक पार्सल देख रहे होंगे जो कि मुझे स्टूडेंट बुक शॉप से आया है, और आप भी ऐसा पार्सल अपने घर बैठे बुक्स हो चाहे टेस्ट सीरीज में मंगा सकते हैं। इस पार्सल में आपको यूपीएससी के टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, तो आप ये घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टूडेंट बुक शॉप से। आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करें, क्वेरीज करें। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके सब दिखा देता हूँ टेस्ट। तो ये विजन आईएएस के टेस्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे विजन आईएएस। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में, और मैं अंदर आपको दिखाऊं किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, आपको सिलेबस इसमें दिया गया है कि ये सिलेबस रहेगा, सोर्स कहाँ से इसके टेस्ट का मटेरियल बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप टेस्ट देख पा रहे होंगे, और साथ ही आपको सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये देखिए फिजिक्स वाला, यानी कि ओनली आईएएस के देख सकते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेफर करते हैं अपनी तैयारी के लिए इनको। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। ये दृष्टि आईएएस के, इसके टोटल अभी मैं टेस्ट आपको बताऊं तो टोटल 6 टेस्ट आ चुके हैं। ओके, ये अभी टेस्ट हैं बाजीराम के। सो आप ये देख पा रहे होंगे, ये बाजीराम के टेस्ट हैं, कुछ इस प्रकार से इसका टेस्ट दे रखा है। सो ये फोरम आईएएस के आप देख रहे होंगे, ये इंग्लिश मीडियम के टेस्ट हैं, ये हिंदी मीडियम के। सो आप ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। फोरम आईएएस काफ़ी पॉपुलर है स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए, और ये आप स्टूडेंट बुक शॉप से मंगवा सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट हो, मेंस टेस्ट हो, यूपीएससी स्टडी मटेरियल हो, मंथली मैगजीन हो, ओल्ड एनसीईआरटीज हो, मैंने मेजर जो काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के दिखाए हैं। इसके अलावा भी आपको इस बुक शॉप से सारी कोचिंग के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। आप जो भी टेस्ट सीरीज मंगाना चाहते हैं, फिर जो भी स्टडी मटेरियल है, बुक्स मंगाना चाहते हैं, इनको कॉल करिए, डिटेल में अपनी व्हाट्सअप पे इंक्वायरी करिए। आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है तब तक ऑर्डर मत करिए, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक डिलीवरी पहुंचने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो आप घर बैठे इन सबको मंगवा सकते हैं। Then come to history. For history, for many people, history is a very big subject, and actually it is a very lengthy subject. If you want to cover history comprehensively, it is very difficult task. So in that, we'll go by smart strategy, that what are the kind of questions they are asking in history. So if you do analysis of 20 paper, 21, 22, 23, 24, or even previous to that, there are certain themes which are common, what we call as high yielding variety. So for example, nowadays they are asking sites about Paleolithic sites or Chalcolithic sites or Mesolithic sites, right? Such kind of sites they are being asking. So focus on that area. Then second, Indus Valley civilization, sites in Indus Valley civilization, features of Indus civilization, or what were the factors which were responsible for decline or degradation of Indus Valley civilization. Such kind of topics they are being asking. Then third comes your Buddhism. Buddhism has been a constant theme. So
from any book like Nitin Singh Ganesar's book is there, or any other book which you are going to refer for art and culture, you have to study Buddhism in a very detailed manner. Like last year, I have seen the question 2024. What were the names given to Buddha? Like alternate Tathagata, Sakyamuni, and other names, right? So understand that to that level UPSC can go. So Buddhism is the one chapter which you have to do thoroughly, 360 degrees. Don't leave a single stone unturned when it comes to Buddhism. Bodhisattva, difference between Bodhisattva and Arhat. There are different sects in Buddhism. Hinayana, Mahayana, these are like broader. In that there are also smaller sects. Focus on that. Then there are certain kingdoms, there are certain places where Gautam Buddha visited. They are also equal importance. Then contemporaries of Gautam Buddha. So I'm just telling you in brief that if you are studying topic like Buddhism, you have to go to this level of depth, not just what is given in NCERT. Like then important topic like literature, Sanskrit literature, Pali literature, that is important. Like every year there are Sangam literature. They are asking about Basa or Kalidasa or any other authors. So at least by elimination you will able to come to have answer, because there are multiple questions in this जिस पे हमें जवाब इजीली मिलेगा नहीं. तो बाय एलिमिनेशन, भले आपने एनसीईआरटी में या फिर नितिन सिंघानिया सर की बुक में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से 2 या 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट करके आंसर ला पाते हो. देन उसके बाद मेजर एरिया जो आता है मिडिवल टाइम के, देयर आर मेजर किंगडम्स ड्यूरिंग मिडिवल टाइम, स्पेशली नॉर्थ इंडिया एंड सदर्न इंडिया. So focus on their timeline, because if your UPSC is asking such factual questions, you should able to solve these questions. So chronology पूछ सकते हैं, then founders and kingdom, so such question पे focus करना. Then comes your विजयनगर empire and मुगल empire. So इसके लिए आप कोई भी बुक से पढ़ लो, विकिपीडिया से पढ़ लो, cover these topics thoroughly. So in this way, if you are able to understand through PYQ, so my first strategy will be to understand PYQ, to understand that how options are framed, see the language optional examiner is using to deceive or to give hints to the aspirants. You should able to understand. So such kind of things you have to follow in ancient and medieval Indian. At the end, if you are a senior aspirant, आपके पास टाइम भी है, आपको लग रहा है कि यू कैन हैंडल इट, देन देयर इज अ स्मॉल बुक ऑफ जीके, लूसेंट जीके बुक. लूसेंट जीके बुक से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर भी कर सकते हो, और देयर आर 30 to 40 पेजेस ऑफ लूसेंट जीके. once you are done with Nitin Singh sir's book and other book like R.S. Sharma or Tamil Nadu State Board book, once you have covered that, go for summation or revision from Lucent JK. This is how ancient and art and culture and medieval India I want to cover, because there will be 10 to 15 questions. 15 के 15 क्वेश्चन सही किसी को आएंगे नहीं, बट एटलीस्ट टू हैंडल देम रीजनेबली वेल, 8 से 9 सवाल करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, ये वाला जो स्ट्रैटेजी बताया. देन मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा बुक है, उसमें से भी कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स एंड सिनॉप्सिस आपको हर चैप्टर के एंड में जो दे कवर करना है. और स्पेक्ट्रम के लास्ट के 60-70 पेजेस जो एनेक्सर बोलेंगे, मिसलेनियस बोलेंगे, उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड. अंडरस्टैंड दैट. This is how you will cover history. Then geography. I told you geography 2 NCERT, 1 mapping, 1 Majid Hussain book, link with environment. In environment also, if you see, there is a huge or palpable change in the trend of questions being asked in environment. So focus on that. कि species के बारे में पूछ रहे तो what kind of questions they are asking in species. Species behavior के बारे में पूछ रहे, whether species are endemic to India or not. So you need to change your orientation when you are studying the books. Just don't study like a डॉग की भाई हमने पढ़ा था, या जस्ट डोंट स्टडी लाइक अ डॉन की कि भाई हमने पढ़ा था जैसे बुक में दिया था, ऐसा नहीं. अप्लाई करना पड़ेगा आपको, न्यूरॉन्स को हमेशा एक्टिवेट करके इंटरलिंक्ड अप्रोच, ऑर्गेनिक अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा. नहीं तो आप हमेशा क्रिप करोगे, सर हम तो 12-12 घंटे पढ़ते थे बट फिर भी सर प्रीलिम क्लियर नहीं हो रहे इतने मार्क्स देने के बाद. नहीं, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट. सो अंडरस्टैंड द पैटर्न. एटलीस्ट I will advise last 6-7 year के पेपर एनालाइज करो बिफोर स्टार्टिंग अ सब्जेक्ट, बिफोर स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन, एंड टेक पेपर कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिंट आउट ले लो और उसको एनालाइज कर लो. उसके बाद पॉलिटी, आपको मैंने बताया पॉलिटी में ओनली लक्ष्मीकांत, उसमें भी देयर आर 10 to 12 चैप्टर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट. लाइक फर्स्ट 10 चैप्टर्स आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. देन चैप्टर्स लाइक प्रेसिडेंट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. भले 70-80 चैप्टर होंगे, उसमें से 20-25 चैप्टर यू हैव टू डू वेरी वेरी थरली. And if you see the question of polity, I will just take some example from 2022 paper. There was a 11th question on contempt of court. So remember, from that one insight is drawn, there is nothing defined in Indian constitution. One. Second, there was 12 question ki government law officers and legal firm are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition. ये these are practical polity के question, but जिसमें but ये है but ये नहीं करो सकते, ये question 100% गलत दिए जाते हैं. In case of polity, rank language will help you a lot. Most of the time they will give
प्रेसिडेंट की जगह पे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट, गवर्नर की जगह सीएम, तो यूपीएससी विल डिसीव इन लाइक दैट वे, इन दैट वे लैंग्वेज गेम विल बी डन. देन देयर वाज अ 60 नंबर का क्वेश्चन 22 के पेपर में, टाइम फ्रेम इज नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन 40 नंबर का क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी क्लासिफाई नहीं किया है. तो देयर आर 4 इनसाइट्स व्हिच आई हैव गिवन टू यू नाउ. तो जैसे अपन ने इनसाइट ड्रॉ की, ये कब पॉसिबल है? जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, जब उसकी लैंग्वेज पता चलेगी. इवन क्वेश्चन नंबर 17. तो जो भी ये वीडियो देख रहे 2022 का पेपर देख लेना, मैंने कुछ एग्जांपल आपके इलुस्ट्रेशन के लिए लिए कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी लैंग्वेज है. क्वेश्चन नंबर 17 में ओनली शब्द आया है. क्वेश्चन नंबर 19 में मस्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट, मस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. देन 20 नंबर में देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, मैंडेटरी इज अ एक्सट्रीम वर्ड, राइट. Then come to question number 28. I am solving 2020. Solving in the sense I am just giving example from 2022 का paper. Come to question number 28. Monazite occurs naturally in the entire Indian coast. Entire Indian coast. Are you getting it? It's a rare earth metal. और जब पूरी इंडिया के entire coast में मिलेगा तो rare का मतलब क्या हुआ? It will be a contradiction and language itself is very very extreme. So 28 में आपको language से पता चल जाएगा. देन कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा 2-3 बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बायोलॉजी फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, ऑर्गेनिज्म के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में. उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्लाइड क्वेश्चंस. साइंस के अप्लाइड क्वेश्चन है तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं साइंस एंड टेक में, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना नहीं. इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस इन साइंस टेक बाय एक्सट्रीम लैंग्वेज, एलिमिनेट इट. अदरवाइज ज्यादा सोचो मत. मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इट स्टिल वर्क्स. Come to question number 30 and 22 only. The organisms in probiotics are found in food we ingest, but they do not found naturally in human body or in our gut. Do not. तो नॉट इज वेरी एक्सट्रीम लैंग्वेज, आपको एक वाइब मिल जाती कि कैसा है. वैसा ही क्वेश्चन नंबर 40 था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था. इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स. देख लेना 7 ऑप्शन है, देख के डर जाएगा भाई, लगेगा 5 मिनट पढ़ने में लगेगा. नहीं, जस्ट देख लो सुनामीज कैसे आते. सुनामीज का आपको मैकेनिज्म पता होता. इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट दैट, यू विल एबल टू कम टू अ कंक्लूजन. एनवायरमेंट में ऐसे काफी चीजें रिपीट हो जाती है. एनवायरमेंट का भी पैटर्न आपने देख लिया होगा, स्पेसिस कैसे पूछते हैं. बेसिक फ्यू क्वेश्चन पूछने लगे हैं. और फिक्स थर्म्स जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन पे क्वेश्चन आते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आते हैं, बायोफ्यूल पॉलिसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं. तो प्रिपेयर अबाउट देम वेल. और चौथा क्वेश्चन है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. नाउडेज यू नो दैट क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस पे जो ग्लोबल वार्मिंग इज बिकमिंग वेरी कॉमन. तो ग्रीन हाउसेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे तो जैसे अंडर 2 कोएलिशन बना, तलाना डायलॉग हुआ, या लाइफ G20 में एक्सेप्ट किया था. तो ऐसी जो चीजें जो वर्ल्ड के हित के लिए अच्छी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एंगल से अच्छी, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की चीजें, वैसे चीजें यूपीएससी पूछ रहे थे. ये थीम्स पे आप काम करोगे. देन कम्स योर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में आजकल काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे. प्राइमरी सेक्टर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेट फाइनेंसिंग क्या है, बेसिक कंसेप्ट है वो करने हैं आपको. फॉरेक्स रिजर्व की कंपोनेंट क्या होते हैं, बीओपी डिफिसिट, बीओपी क्राइसिस होता है तो क्या होता है, व्हाट इज बीओपी. तो ट्राई टू वर्क ऑन दैट. व्हाट इज एफडीआई, बेसिक क्वेश्चन एफडीआई पे. इफ यू सी इकोनॉमिक्स के थीम्स, एफडीआई पे सवाल पूछते हैं, एमएसपी पे सवाल पूछते हैं, केसीसी पे, किसान क्रेडिट कार्ड पे सवाल पूछते हैं, डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन आता है, आईएमएफ पे क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन आता है फिक्स. देन देयर आर डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, उस पे सवाल आते हैं जैसे एफएसडीसी हो, वो बैंक बोर्ड ब्यूरो हो, ऐसे चीजों पे सवाल आने लगे. 3-4 बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, 3-4 अप्लाइड क्वेश्चन पूछेंगे और 3-4 गवर्नमेंट स्कीम्स पूछेंगे. गवर्नमेंट स्कीम भी कौन से, वुमेन एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के जैसे एसएचजीस हो, या फिर फैमिली प्लानिंग के डिपार्टमेंट पे पूछेंगे. तो ये चीजें आपको एनालाइज करना है. 3 to 4 स्कीम्स विल बी आस्क्ड. स्कीम में भी एक आप फॉर्मेट देख लो, कौन ओरिजिन कर रहा है वो मोस्टली गलत दिया जाता है. पर्पज क्या होता है वो आपको जानना होता है. और उसमें भी फैक्चुअल देंगे, 6 महीने 12 महीने, आयरन फॉलिक एसिड की जगह दूसरा कुछ देंगे. तो इस पे आपको फोकस करना है. स्कीम पे भी आंसर क्वेश्चन इजी आते हैं, बट आपको लैंग्वेज को भी अच्छे से देखना है. अब मिडिवल इंडिया हो गई, बाकी चीजें काफी टफ पूछते. उसके बाद आईआर के सवाल आते हैं, जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है. ऐसे क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो चुके हैं. और रिसेंटली अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी आए, तो उस पर भी काफी चीजें नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की है. जैसे मुझे लगता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उसके काफी दिनों से आ रहे थे, उसके बारे में पूछ सकते हैं.
कोई इंटरनेशनल एनजीओ बन रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लास्ट टाइम इंडिया में इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन पे पूछा था, एक बार वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा, तो ऐसी चीजें वेदर दे आर पार्ट ऑफ इवन और वेदर दे आर एनजीओ, आपको ये चीजें भी जाननी है। तो ये सटल डिफरेंस जब तक आपको एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स में जो ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं समझ में नहीं आता, तब तक आपको कंफ्यूजन लगेगा। तो ये काफी चीजें आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से पता चलेगी। और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में बस आपको 100 क्वेश्चन नहीं है, दे आर 400 क्वेश्चंस, बिकॉज एक क्वेश्चन में 4 मिनिमम ऑप्शन भी पकड़ लो तो 4 ऑप्शन के बारे में पढ़ लेना। जैसे 4 रिवर दिए, पेन्ना रिवर, मंजरी रिवर, तुंगभद्रा रिवर, कावेरी रिवर, तो भले इस बार का आंसर सपोज पेन्ना रहे, नेक्स्ट टाइम देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कावेरी के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीजों के बारे में देखना ही है। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस इतना मेटिकुलेशन, इतना थरो होना चाहिए कि assume that the options which are given in that paper are a potential source of question for future years। तो मैं एक पेपर एनालिसिस या फिर कुछ क्वेश्चन पेपर से इसीलिए ले रहा हूं कि हम काफी बार मुझे ये सवाल पूछे, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स देना चाहिए, तो मुझे लगता है इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव सिंगल आंसर हो सकता नहीं, सब्जेक्टिव आंसर है काफी। मेरा तो पहला कहना है, जो भी अभी इस साल की तैयारी करे, 8 से 10 यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, उससे आपको एक तो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम्स जाननी है, try to understand what kind of options are being framed, understand the psychology of examiner through the paper। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू टेक 80 नंबर का क्वेश्चन था ग्रीन वॉशिंग, हम डे टू डे लाइफ में ब्रेन वॉशिंग पढ़ते, तो उसी की वजह से कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। देन 79 क्वेश्चन वाज अबाउट टी बोर्ड। टी बोर्ड में देख लेना, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, बट किसी की कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ये मिनिस्ट्री या कुछ ओरिजिन या कुछ फैक्ट देते, वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी गलत देते। तो यहाँ पे आपको दिमाग की बत्ती लगनी चाहिए यार, एग्रीकल्चर है या कॉमर्स है या बेंगलुरु या कोई और है, तो ऐसी चीजें आपको मैटर करती है, फैक्चुअल। आईआर में भी आपको यूएन और इंडिया के जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया मेंबर है, वो आपको करना ही करना है। हाँ, एक टफ क्वेश्चन आजकल क्या आने लगे, जो कंट्रीज न्यूज में होते, बिकॉज इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कवर न्यूज थ्रू आउट द ईयर, इतना पॉसिबल होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो जितनी भी पॉसिबल है 10 20 50 कंट्री आप कोई भी करंट अफेयर के बुकलेट से ले लो और उसमें से आप कंट्री जानने की कोशिश करो। और जो एरिया कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मिडल ईस्ट हो, फिर सेंट्रल एशिया हो सकता है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो, वो जो एरिया न्यूज में हमेशा रह रहा है, वहां की मैपिंग कर लो। मुझे पता है ये बोलना बहुत आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, चैलेंजिंग हो जाता है, बट कोशिश कर लेना। और यूएन की ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से करके रखना, क्योंकि हर साल यूएन के ऑर्गेनाइजेशन में सवाल आते ही आते हैं। तो यस, 4-5 क्वेश्चन जो न्यूज में रहेंगे करंट वाले, वो थोड़े से टफ रहेंगे, जैसे चाड में क्या हुआ, गिनी में क्या हुआ, लेबनान में क्या होगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर फॉलोइंग द न्यूज थरली, और तो आपने अच्छा पढ़ा है तो हो नहीं सकता। तो दिस इज जनरल परसेप्शन अबाउट पेपर। वही 22 का पेपर है, वैसा ही 23 का पेपर है, वैसा ही 24 का पेपर है, तो पेपर में बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आपको वही मैंने जैसे बोला कि बेसिक बुक्स आपने पढ़ ले एनसीईआरटी, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर ले, रिवाइज कर लो। दोज हु आर अपेयरिंग फॉर 2 मिनट में, अभी इस साल कैसे आप टैकल करोगे, जो अभी आपकी मई में एग्जाम है, उसके लिए आप, मुझे लगता है मैक्सिमम 15 अप्रैल तक आपको सब सिलेबस पूरा करना है। उसके बाद आपको रिवीजन देनी है, उसके बाद आपको मॉक्स देने हैं, तो 10-5 मॉक्स के पेपर, जस्ट टू गेट कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव अबाउट एग्जाम। दूसरा, कोई भी मॉक का पर्पज हमेशा आपके रिवीजन करना होना चाहिए, एक स्किल सेट बनाना चाहिए, टू बिल्ड टेम्परामेंट। क्या होता है, प्रेशर में हम सिली मिस्टेक्स भी कर देते, तो वो सब कुछ कम करने का आपका मकसद होना चाहिए। तो डू थरो एनालिसिस ऑफ लास्ट 8 to 10 ईयर पेपर्स, और आपको उससे यूपीएससी की साइकोलॉजी भी पता चलेगी, ऑप्शन फ्रेमिंग कैसे होती है ये भी पता चलेगी, और जो ऑप्शन उस टाइम पे दिए उनके बारे में थरोली पढ़ोगे तो यू नेवर नो, 2-4 क्वेश्चन उसमें से रिपीट भी हो जाएंगे, होते ही होते हैं। जैसे एनवायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस टेक जैसा सब्जेक्ट है, इनके करंट अफेयर लॉन्जिट्यूडनल वे में पढ़े, 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर के न्यूज, एटलीस्ट जो भी करंट अफेयर के बुकलेट पढ़ रहे हैं आप, उसमें से इंडेक्स पढ़ लेना कि ये चीज बायोटेक्नोलॉजी की, ये चीज एआई के रिलेटेड है, ये चीज किसी और के रिलेटेड है। इससे क्या होगा, आपके साइंस एंड टेक के जो सीमिंगली इजी क्वेश्चन है, वो भी सीमिंगली टफ लगने वाले क्वेश्चन जस्ट आपने सुपरफिशियली एक्सटेंसिवली कई पढ़े होंगे, तो भी फायदा होगा जाए। तो पूरा पेपर आपको कई जगह इंटेंसिव अप्रोच लगना, जैसे पॉलिटी पढ़ोगे तो इंटेंसिवली पढ़ो, साइंस टेक पढ़ो तो एक्सटेंसिवली पढ़ो, मतलब सब कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ो तो कंसेप्चुअली बहुत अंदर जाके पढ़ लेना, तभी तो आपको पता चले भाई यूएस फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो इंडिया के करेंसी पे क्या इंपैक्ट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या होगा, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए। और जहां जहां ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेस अवेलेबल, ट्राई टू रेफर दैट। और जो गवर्नमेंट बॉडीज है, वेदर इट इज इन इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज इन एनवायरमेंट और कई और, तो ये बॉडीज पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और इंटरनेशनल बॉडीज में भी जहां इंडिया मेंबर है, वो बहुत मैटर करेगा। एनवायरमेंट के भी स्पेसिस भी पढ़ोगे तो उसमें ये हमेशा एंडेमिज्म पे फोकस करो कि कहाँ की है। तो ये जब चीजें पढ़ोगे, आपको झूठ लगता होगा तो 22, 23, 24, 20 से कोई भी 3-4 पेपर देख लेना, देयर इज अ कॉमन थीम,
वो थीम को फॉलो करते हुए आपको ये करना है। अब तो ये हुआ आपकी बुक्स, रिसोर्सेस और पेपर कैसे सॉल्व करना। ये हो गया आपका 50% पार्ट। 50% पार्ट है आपका डी डे मैनेज करना, जो बहुत टफ होता है। हम इतनी तैयारी करने के बाद भी फेल क्यों होते? प्रेशर मैनेज नहीं होता है, एक दिन पहले सो नहीं पाते, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, दूसरों के देख के लगता है यार वो तो पहले IRS है, IPS है, इसको देखे तो हम कैसे कब होंगे। तो ये सब चीजें लास्ट दिन पे याद आती। तो जो वो लोग, मुझे लगता है एक या 2 अटेम्प्ट फेल हो चुके प्रीलिम में, वो बच्चे थर्ड अटेम्प्ट में आके बस दे, बिकॉज पहले 2 बार क्यों फेल हुए, ये चीजें उनको हमेशा हॉन्ट करती। इस चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक स्मार्ट एनालिसिस करोगे तो कोई भी, भले ओनली वाला पैटर्न हो, कुछ भी पैटर्न हो, इट्स इजीली टैकलेबल। और याद रखना, कितना भी करोगे तो 100% सवाल आने नहीं चाहिए, क्यों आने नहीं है तो कट ऑफ उतना लगता भी नहीं, टेंशन भी मत लेना। रीजनेबली 10 से 15 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। अब कौन से स्किप करने, मिडिवल इंडिया के स्किप करने, इकोनॉमिक्स के स्किप करने या साइंस टेक के करने, इट डिपेंड्स ऑन द योर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, योर कंफर्ट विद द सब्जेक्ट। तो बट एटलीस्ट देयर आर 4 to 5 सब्जेक्ट जहां पे बुक्स बहुत अच्छे, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इवन एनवायरमेंट होगा, ये वाले बुक बहुत अच्छे से थोरोली प्रिपेयर करना। इट्स अ ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन, तो सभी लोग ऑलमोस्ट सेम बुक पढ़ते हैं। तो व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज द वे यू एनालाइज द पेपर। सो थ्रू scrupulous analysis of previous year papers, we are coming with the equation of demand and supply. What UPSC is demanding, what is the psychology of the examiner, and what I am supplying is going to match the equation. Once LHS is equal to RHS, we are going to clear the exam. So I think, and those people who are, I will humbly request those who are weak in CSAT, डोंट इग्नोर इट। आपको कोचिंग लगाने लगवाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर करने करवाओ, आपके दोस्त कोई IIT कैट की तैयारी कर रहा है, IIM की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हेल्प ले लो, जिससे भी हेल्प लेनी, बट डोंट इग्नोर CSAT। बिकॉज आप जीएस के लिए 90% टाइम देते हो और 10% टाइम भी CSAT को देते नहीं, और लास्ट में रोते सर मेरे जीएस में 100 आए थे और CSAT में 55 ही आए, ये वाला चलेगा नहीं। सो योर प्रिपरेशन हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड, इक्विपॉइज्ड, जो आपको बहुत काम करेगा। तो थैंक यू सो मच। मैंने काफी चीजें, बेसिक चीजें कवर करने की कोशिश करे। ऑल द बेस्ट टू ऑल पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।